Okay, so please let me know if you have any questions, or we take the questions at the end. First, we'll start with the topic. So today's topic is fatty liver. Yeah, basically we will be talking about the issues that are related to fatty liver or pancreatitis and anemia. These are the three things that we are covering. Definitely, जब फैटी लिवर को आप कंट्रोल करते हो तो आप सिरोसिस ऑफ लिवर भी कंट्रोल कर लेते हो, क्योंकि फैटी लिवर की एडवांस स्टेज में सिरोसिस होता है. अगर आप फैटी लिवर को कंट्रोल नहीं करोगे, ग्रेड 1 proceeds to grade 2 and then grade 3. So we will talk about it. Okay. So we'll start with pancreatitis. Okay. So when we are talking about pancreatitis, am I audible to everybody? If anybody can say, show thumbs up or, okay, thank you so much, Divyanshi. Okay. So pancreatitis basically is inflammation of pancreas. जब pancreas में inflammation होती है, उस condition को pancreatitis बोलते हैं. Pancreas is basically a long duct, this leaf-like yellow color structure which is at the curve of duodenum. Stomach होता है, फिर duodenum होता है, and then small intestine होती है. तो duodenum के curve में pancreas situated है, और it is important, ये enzymes hormones produce करता है. It maintains the regularity. Now there are two kinds of pancreatitis, acute and chronic. Acute means कि if you know it is just very superficial infection or inflammation and थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं तो वो ठीक हो जाता है. Chronic pancreatitis जो बहुत severe होता है, बहुत months and years से चलता जा रहा है, and then it is a chronic pancreatitis. Mild होगा, acute stage पे होगा, it is easily reversible. Chronic will also have other implications, other complications also. तो होता क्या है pancreatitis में, अगर वो gall stones की वजह से cause होता है. Now this is the gall bladder and यहाँ से gall stones अगर flush out होके obstruct कर देते हैं इस pathway को. Now pancreas में pancreas juice, pancreatic juice, enzymes are produced. So these enzymes which are produced in the pancreas, इन्हें यहाँ से निकल के duodenum के थ्रू ये small intestine में जाते हैं. Now if they are not able to go because ये pathway block हो गया stones की वजह से, so वो enzymes और juices जो हैं, जो acidic juices हैं, वो यही रह जाते हैं, pancreas में ही रह जाते हैं. ठीक है. तो क्या होता है, वो because they are so acidic and the enzymes needs to go, वो एक normal function है, उस वजह से वहां पे inflammation होने लग जाती है pancreas में. Okay. So this is what happens when there is gallstones and when they block the bile duct. And because of the blockage, यहाँ पे pancreas में inflammation हो जाती है. This is known as acute pancreatitis. And जब अगर ये inflammation हल्की हल्की body में abdominal pain होती है, लोग इग्नोर कर देते हैं कि okay, let the pain happen. कभी कभी वो फिर chronic stage पे चली जाती है, और chronic stage को reverse करना, we all know that it is little difficult. Symptoms. Now when we are talking about acute pancreatitis में upper abdomen में pain होती है. Pain is such that कि वो back side पे भी radiate होके जाती है, and it worsens when somebody eats food, because when somebody eats food, in response to food the juices, the enzymes are released, so the pain further increases because वो juices फिर pancreas में bigger amount में accumulate हो जाते हैं. इन्फ्लेमेशन की वजह से फीवर होता है, पल्स रेट रैपिड हो जाती है, देयर इज नॉजिया, वॉमिटिंग एंड टेंडरनेस. क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में देयर इज अपर एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस होता है विदाउट एनी रीजन, एंड बिकॉज the enzymes that are secreted by pancreas, उनका मेन रोल रहता है फैट के डाइजेशन में.
बिकॉज फैट डाइजेशन गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, सो ऑयली स्मेली स्टूल्स होते हैं जिसे स्टिटोरिया कहा जाता है. ओके, सो क्रोनिक और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में ऑलमोस्ट सिम्टम्स सेम रहते हैं, बट क्रोनिक अगर इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे समय तक रहती है तो फैट डाइजेशन इम्पैक्ट होता है, एंड एज अ रिजल्ट वी विल गेट ऑयली स्मेली स्टूल्स. सो पैनक्रियाटाइटिस के रिस्क क्यों होता है, लाइक किन इंडिविजुअल्स को रिस्क रहता है पैनक्रियाटाइटिस होने का? इंडिविजुअल्स हु आर कंज्यूमिंग मोर अल्कोहल. Okay, one reason is this. Another reason can be if people are too much into cigarette smoking. So that is a reason for chronic pancreatitis. And obesity is the reason, can be the reason for any problem that can happen in the body. So obesity is the another reason. Family history अगर किसी को होगी pancreatitis की, so उस केस में भी, फॉर एग्जाम्पल मेटर्नल साइड और पैटर्नल साइड आपके पेरेंट्स को नहीं है बट आपके पेरेंट्स को इश्यूज हुए तो भी द चांसेस आर देयर. सो व्हाट डू वी डू इन पैनक्रियाटाइटिस में द ओनली थिंग दैट इज डन, मैक्रोज में हम फैट रिस्ट्रिक्ट करते हैं. एंड फैट रिस्ट्रिक्ट हम करते हैं, हम सिर्फ मीडियम चेन फैटी एसिड्स देते हैं, नो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गिवन because as such digestion of fat is a problem here in pancreatitis. ठीक है, लिवर की कोई भी इश्यूज लिवर से कनेक्टेड होगी, सो ये पैनक्रियाटाइटिस है बट इट हैज एन इनडायरेक्ट कनेक्शन विद लिवर आल्सो, बिकॉज बाइल जूसेस वगैरह सब लिवर से ही गॉल ब्लैडर के थ्रू आ रहे हैं. ओके, सो डाइट थेरेपी में हम हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, लो फैट, लो फाइबर डाइट देते हैं. ओके, एंड इन इस केस की डाइट्स में हम लोग TDEE कैलकुलेट नहीं करते हैं. हम 25 to 30 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट देते हैं. अगर वेट लॉस बहुत ज्यादा हो गया है तो हम 30 किलो कैलोरी भी देते हैं, और अगर वेट लॉस कम है तो हम 25 किलो कैलोरी भी देते हैं. प्रोटीन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी, प्रोटीन फिर भी इंक्रीज होगा. यूजुअली अगर किसी को पैनक्रियाटाइटिस होते हैं वो वैसे भी ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो 1.2 to 1.5 gram of protein per kg body weight is required. So calculating the energy per kg body weight, for example the person is 60 kgs, तो 1800 किलो कैलोरीज की हमारी डाइट बनेगी, जिसमें से 60 मल्टीप्लाई बाय 1.5 समवेयर अराउंड 90 किलो कैलोरीज की हमारी 90 ग्राम्स हमारा प्रोटीन में होगा. सो वी डू बैक कैलकुलेशन. हम बैक कैलकुलेशन से समझेंगे कि हम कितना परसेंटेज प्रोटीन दे रहे हैं. देन वी गिव प्रेफरेंस टू कार्बोहाइड्रेट्स, एंड फैट्स हमारे 20 to 25% के बीच में हॉवर अराउंड करेंगे. मल्टीविटामिन्स जिनका हमें ध्यान रखना है वो होंगे कैल्शियम, आयरन, फोलेट, विटामिन ए, डी, ई एंड B12. इनकी हमें सप्लीमेंटेशन कभी कभी देनी पड़ती है, या इफ दे आर मेट थ्रू डाइट देन इट इज ओके. नाउ सिंस पैनक्रियाटिक एंजाइम्स वर्क नहीं कर रहे हैं, खाना डाइजेस्ट करने के लिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में दे आर नॉट एबल टू रीच, so in that case sometimes through the supplements we have to provide pancreatic enzymes also, intravenously भी हम provide करते हैं. Okay, now if alcohol, how do we relate alcohol with pancreatitis? If pancreatitis is caused by alcohol, then obviously alcohol से cause हो या नहीं हो, alcohol
has to be restricted completely. पैनक्रियाज हम मेजर डाइट और लाइफस्टाइल पे फोकस करते हैं, स्लीप पे फोकस करते हैं, स्ट्रेस इश्यूज पे प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो इजीली रिवर्स हो जाता है. ओके, क्रोनिक केसेस also get easily reversed, but then one has to be consistent with the practices. The foods which we can eat and avoid. So if you see, vegan diets work very well. अगर हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं, एग्स, नॉन-वेज फूड्स अवॉइड करते हैं, सो वीगन डाइट्स आर वेरी वेरी beneficial for reversing the conditions. But if somebody wants to include non-vegetarian food, then egg yolk will not be included. It will be egg white or good omega-3 rich fishes that can be included. Okay, so fried foods, processed food, baked foods, high fatty foods, these should be avoided. Coming on to आयुर्वेद एंड पैनक्रिएटाइटिस. आयुर्वेद में पैनक्रियास को अग्नेयशा बोला जाता है और पैनक्रिएटाइटिस को अग्नेयशा श्रोता बोला जाता है. एंड इट इज और इसके सिम्टम्स बेसिकली होते हैं क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है. डाइजेशन इज अग्नि में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो पैनक्रिएटाइटिस का जब इनिशियल फेज होता है, एक्यूट फेज होता है, सो वाता पित्ता का इम्बैलेंस देखा जाता है और एग्रवेशन होता है रसा धातु का. एंड क्रोनिक स्टेट में धतक्षयु का एग्रवेशन होता है. एंड बिकॉज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस बॉडी की डाइजेस्टिव पावर्स कम हो जाती हैं और बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा होते हैं. तो इस केस में आयुर्वेद के हिसाब से हमें सात्विक डाइट लेनी चाहिए. फ्रेशली प्रिपेयर्ड वार्म फूड शुड बी टेकन. वन शुड नॉट रिपीटेडली हीट द फूड, एंड वो फूड हमें नहीं लेना चाहिए. ईटिंग रॉ अनकुक्ड फूड शुड बी अवॉइडेड. हर एक मेन मील के बाद, स्पेसिफिकली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बाद अगर वज्रासन में इवन फॉर 2 to 3 minutes बैठते हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल. दिन में सोना नहीं चाहिए. स्लीप साइकिल डिसिप्लिन होना चाहिए. रात को समय पे सोना, सुबह समय से उठना. डिनर शुड बी लाइट. देयर शुड बी योग प्राणायाम दैट शुड बी प्रैक्टिस. भ्रमारी प्राणायाम भी बेसिकली वज्रासन में ही बैठ के होता है. शीतली शीतकारी ओम चांटिंग शुड बी डन. लस्सी, बटर मिल्क, नॉट स्वीट लस्सी, बटर मिल्क, जिसमें हम आंवला अगर डाल दें, दीज आर 2 things that work really really well for pancreatitis. कर्ड लेने से ज्यादा अच्छा है अगर हम तकरा लें, तब बटर मिल्क को तकरा बोला जाता है. देन फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, एनीमा, वेरेशना, ये सब गुड ट्रीटमेंट्स हैं पैनक्रिएटाइटिस के लिए. देयर आर सर्टेन हर्बल फॉर्मुलेशंस लिस्टेड हियर व्हिच वन कैन हैव. आंवला का चूर्ण, आंवला की रसायन, चंद्रभागा, कुटुज घनवती. So all these concoctions are available in Ayurvedic centers, and हम वो अपनी डाइट में include कर सकते हैं depending upon which one is most suited according to the conditions the person have. Okay, any questions related to pancreatitis? Then I move on to fatty liver. किसी को कोई question है pancreatitis से related? Yes, Sachidanand, please ask your question. मैम, ये जो पैनक्रियाटाइटिस जो बता रहे थे, ये जो शुगर वगैरह होता है जो पैनक्रियाज में, तो इसी के चलते होता है क्या? नहीं, शुगर जो होता है, डायबिटीज जो होता है, उसका रीजन अलग रहता है. बट इसकी वजह से शुगर हो सकता है क्योंकि हार्मोन इंसुलिन भी रिलीज नहीं हो पाएगा अगर पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन रहेगी. अगर तो एक्यूट है तो शुगर लेवल ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी क्योंकि बॉडी थोड़े टाइम तक संभाल लेती है. बट अगर क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस हो गई तो यस, बिकॉज पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं पहुंचा पा रहा है सिस्टम तक, इसलिए शुगर लेवल्स बढ़ सकती है. मतलब जो ये बोलते हैं कि शुगर हुआ है तो आपका पैनक्रियाज प्रॉपर वैसे काम नहीं कर रहा है, तो ये जो पैनक्रियाज जो काम नहीं कर रहा, तो इसमें ये कारण ये हो सकता है. जी बिल्कुल बिल्कुल. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू. Hempriya, please ask your question.
मैम अगर क्रोनिक ये है डिसीज है तो उसमें डाइट क्या ज्यादा दे सकते हैं और उन्हें रिस्ट्रिक्टेड क्या रहेगा, मतलब उन लोगों का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच में हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उनका फैट, आपने बताया फैट उनको नहीं चलेगा, तो उन्हें फिर क्या दे सकते हैं अगर क्रोनिक डिसीज है ये? तो क्रोनिक हो या एक्यूट हो, मैनेजमेंट सेम रहेगा। क्रोनिक और एक्यूट में सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो लंबे समय तक चल गई है और उस पे काम नहीं किया गया एक्यूट लेवल पे, इसलिए वो क्रोनिक पे पहुंच गई है। ठीक है, सो मैनेजमेंट दोनों का सेम रहेगा। हम नॉर्मल मील्स प्लान करेंगे बट हमारी मील्स में फैट परसेंटेज 20% होगा। रॉ सैलेड्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रॉपर पका हुआ खाना, फ्रेशली वार्म फूड शुड बी गिवन एंड प्रोटीन्स हाई होंगे। फ्रूट्स भी कभी कभी फाइबर रिच फ्रूट्स भी हम अवॉइड करते हैं। we give usually fruit juices in this case because as such the person is losing weight without any reason. Hempriya, hope this answers your question. अगर डाउट होगा please raise your hand again. Hema, please ask. गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम इसमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब ब्लड टेस्ट में भी क्या टेस्ट होने चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि पैनक्रियाटिस है? Basically, first of all, inflammation marker CRP, ferritin levels, ESR levels increased आते हैं, जिससे हमें पता चलता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। Then, according to the symptoms, doctor decides कि पैनक्रियाटिक अगर है तो एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम एंड स्पेसिफिक हार्मोन टेस्ट किए जाते हैं। समटाइम्स अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन भी किए जाते हैं एब्डोमिनल एरिया के, उसमें डिटेक्ट होता है, या समटाइम्स बायोप्सी इज आल्सो डन। तो मैम ये रिवर्सिबल है या इसको क्योर किया जा सकता है? एब्सोल्युटली रिवर्सिबल। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो वी प्रोसीड फॉरवर्ड टू फैटी लिवर। सो नॉर्मल लिवर में फैट कंटेंट होता ही होता है। ठीक है, लिवर एक हमारी बहुत बड़ी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। लिवर से बड़ी हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन नहीं है, और लिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैरी आउट करती है। लिवर बेसिकली एवरी सिंगल डे 300 एंजाइम सीक्रेट करती है। लिवर इज मेकिंग प्रोटीन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, इट इज सिंथेसाइजिंग लिटिल अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल दैट द बॉडी नीड्स। लिवर में T4 to T3 कन्वर्जन होता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है विच इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज बैक टू ग्लाइकोजन, बाइल प्रोडक्शन होती है। सो इट हैज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस रिलेटेड टू एवरी कंडीशन। सो अगर फैटी लिवर होता है या लिवर को कंडीशन को मैनेज नहीं किया जाता, तो देर आर सर्टेन कंडीशंस लाइक हेपेटाइटिस, cirrhosis, cancer. So hepatitis is weakening of the liver. Cirrhosis is liver cells damage and dead होते रहते हैं, and eventually liver failure हो जाता है, and cancers we all know. Liver के जो ये changes हैं, it is happening maybe because too much of toxins are present inside and drugs. हम अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जब लेते हैं तो वो लिवर हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। So this is, if you just see in my cursor, this is liver. छोटा सा ये ग्रीन गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे ये पैनक्रियाज है, दिस इज स्टमक, एंड देन देयर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। फैटी लिवर को हिपैटिक स्टेटोसिस भी बोला जाता है, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वी नीड टू अवॉइड गिविंग मोर स्ट्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फैट कंटेंट लिमिट रहेगा डाइट में, एंड लिवर इन्फ्लेमेशन को बचाने के लिए हम अल्कलाइन बेस्ड डाइट सजेस्ट करेंगे ताकि स्केलिंग इफेक्ट ज्यादा ना हो। एंड अगर स्केलिंग इफेक्ट को या लिवर इन्फ्लेमेशन को हमने स्टॉप नहीं किया तो वो धीरे धीरे लिवर फेलियर में भी कन्वर्ट हो जाती है इफ इट रिमेन्स एट द क्रोनिक स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो टू टाइप्स ऑफ लिवर होते हैं, जो अल्कोहल की वजह से होता है उसे अल्कोहलिक फैटी लिवर बोला जाता है, जो अल्कोहल की वजह से नहीं होता उसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बोला जाता है। If you just see, there is a difference in the healthy heart and fatty liver.
sorry, healthy liver and fatty liver. Fatty liver थोड़ा enlarged और swollen लग रहा है. And it is also detected through ultrasound, CT scans, MRI scans, and liver biopsy. Fatty liver. So blood test इसमें basically hormonal test किए जाते हैं, ALT, AST की. So together with that, we calculate the BMI, the waist hip ratio and waist circumference to understand whether the person is overweight, obese, and कुछ रिपोर्ट्स में डॉक्टर ALT, AST की जगह SGOT, SGPT करवाते हैं. The enzymes remain same, which is alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase. These tests are done. Treatment में we just have to follow the simple protocol. No alcohol, no smoking, no milk in the diet, then less fiber diet, low fat diet, high protein diet. Saturated fats, it is same written, saturated fats हमें नहीं लेनी चाहिए. So the best diet tips for fatty liver are complex carbs होने चाहिए and low glycemic index foods होने चाहिए. The principle remains the same. Healthy fats, foods, vegetables होने चाहिए. Sufficient proteins होने चाहिए, which takes care of the metabolism और liver health को भी boost करता है. Fat should be minimal and bad fats, trans fats, saturated fats, processed foods, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए. 10 foods. So you know how do we plan the diet is, हम एक अपनी यूजुअल डाइट प्लान करते हैं और यूजुअल डाइट प्लान अगर नॉर्मल है, वेट लॉस है, उसके हिसाब से हम चेंजेस कर देते हैं. अगर किसी को वेट लॉस करना होगा, डेफिनेटली वी विल बी प्लानिंग अ कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव डाइट, एंड इफ द पर्सन हैज टू गेन वेट, देन वी विल बी प्लानिंग अ हाई कैलोरी डाइट. So diet plan करके for the liver health we try and add at least 2 or 3 foods out of these foods. आयुर्वेद के हिसाब से फैटी लिवर को कोरिलेट किया जाता है यकृत उदर रोग से, एंड डिजीज एब्डोमिनल कैविटी में स्टार्ट होती है, एंड यू नो द सी शेप डियोडेनम, वहां पे उदर रोगा इज देयर. हम अपने लिवर को फैट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं एलोवेरा जूस अगर हम पिए. If we have amla, it can, and amla is present in a lot of things. त्रिफला चूरन में भी आंवला present है. मांड पीने से, मांड इज अगर आप एक्स्ट्रा पानी डाल के चावल बॉईल कर रहे हो एंड उसके बाद यू नो यू आर कलेक्टिंग, यू आर डिस्कार्डिंग द वाटर, दिस डिस्कार्डेड वाटर इज रिच इन मांड. This is very well digested and it is something great to be taken in the daily diet of fatty liver. Buttermilk लेना है कर्ड की रिप्लेसमेंट में. बटरमिल्क हम 24/7 ले सकते हैं अगर किसी को इश्यूज नहीं होते तो. So what do we do about anemia? So let's first talk about fatty liver. Any questions related to fatty liver? I'll just see if I have fatty liver plan. I'll just share one fatty liver plan with you. I'll just share the plan, then I'll come to your question so that you have an idea. So this is something in sync with Ayurveda. Upon rising, rinse the face with cold water, scrape tongue and have a glass of lemon water. लेमन बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करती है लिवर को, एंड जितना ज्यादा लिवर डिटॉक्सिफाई रहेगा उतनी सेल जनरेशन अच्छे से होगी. फ्रेश फ्रूट्स, ओट्स एंड मल्टीग्रेन ब्रेड, दिस हैज टू बी ग्लूटेन फ्री. लेमन वाटर, एप्पल साइडर विनेगर, फेनल सीड्स, ये तीनों ही kinds of waters are very very helpful in reversing fatty liver even if it is grade 3. Then we are having dal, we are having, if somebody wants to have eggs can have. Then lighter dinners, lighter snacks with lighter dinners. अगर आप देखेंगे fats are very very limited. We'll go very light on dinner.
and lemon cinnamon with a teaspoon of isabgol. Okay, this is what the fatty liver plan looks like. Yes, please ask your questions. Sachidanand, please ask your question. मैम जो ये हम लोग फैटी लीवर के लिए ये जो डाइट में तो थोड़ा बहुत चेंज करेंगे ही, इसके साथ में जो आयुर्वेदिक के हिसाब से जो गौधन अर्घ होता है, जिसको गौधन अर्घ बोलते हैं जिसको, तो वो उसमें क्या हेल्पफुल होता है मैम? अगेन आप ये आयुर्वेदिक टीचर से पूछेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे. राइट, मतलब जैसे कि अच्छा ठीक है मैम, यही थोड़ा सा. ओके, थैंक यू. हेमा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. मैम अगर किसी को प्रोटीन का इशू है, गाउट है उसको, तो उसकी डाइट कैसे प्लान करेंगे? हाँ, सो जब मल्टीपल इश्यूज होते हैं कि फैटी लिवर भी है, गाउट भी है, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू पुट, या? यस. हाँ, सो नाउ वी नीड टू गिव प्रायोरिटी कि गाउट ज्यादा तकलीफ दे रहा है या फैटी लिवर ज्यादा तकलीफ दे रहा है. सो उस केस में गाउट इज मोर प्रॉब्लमैटिक. वी रिस्ट्रिक्ट द प्रोटीन इनटेक टू 0.8 ग्राम. वी गिव कार्बोहाइड्रेट 25 to 30 कैलोरीज के हिसाब से. हम जितना उनका मोबिलिटी करवा सकते हैं, बिकॉज गाउट में जॉइंट्स में पेन होती है. सो फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा, इन्फ्लेमेशन दोनों में ही हो रही है, फैटी लिवर में भी इन्फ्लेमेशन है, गाउट में भी इन्फ्लेमेशन है. सो हमारी जो डूज हैं, लाइक हैविंग एलोवेरा, having turmeric, having alkaline based food, ये सेम रहेंगे. बट हम प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करके पहले गाउट को थोड़ा स्टेबलाइज करेंगे. जब हमें 2-3 महीने में गाउट स्टेबलाइज लगेगा, एट द सेम टाइम हमारे कार्ब्स हाई रहेंगे, 60 to 70%, फैट्स लिमिटेड रहेंगे. और एज वी आर लिमिटिंग द फैट्स ऑल्सो, हम प्रोटीन्स भी कर रहे हैं. इट विल नॉट बी अ कंप्लीट बैलेंस डाइट as per the requirements, but we have to do this modification. So coming again, हमारे proteins restricted रहेंगे 0.8 gram per day according to the body weight. Carbohydrates will be calories will be 25 to 30%, wherein carbohydrates can be 65 to 70%. We restrict fats to 20%. Okay, and man, hepatitis A and hepatitis B and serum bilirubin, ये लिवर से कैसे रिलेटेड है और दोनों में क्या डिफरेंस है? They again are inflammatory. Autoimmune conditions भी होती है. सीरम बिलिरुबिन इज द लेवल, वो एक लेवल सीरम में टेस्ट की जाती है टू अंडरस्टैंड हाउ वेल द लिवर इज फंक्शनिंग. सो सीरम बिलिरुबिन लेवल्स या तो हाई होंगी या कम होंगी. हाई होंगी विच मींस देयर इज सम एबनॉर्मलिटी दैट इज गोइंग ऑन इन द लिवर. येलोइश टिंचनेस ज्यादा रहती है, बिलिरुबिन लेवल्स टू हाई चले जाएं अगर तो. When we come to hepatitis A and hepatitis B, both are inflammatory conditions and उनका मैनेजमेंट दोनों का सेम रहता है. I'll just share the difference chart with you. जैसे PCOD and PCOS में बहुत कम difference था. Likewise, they have a very slight difference. I'm just sharing the chart with you. So basically there are 3 types of hepatitis that can be caused. It is hepatitis A, hepatitis B and hepatitis C. Also it has been found कि D and E भी होते हैं, but we are not going too much in detail. Understanding about the A and B, C. First of all, hepatitis in nutshell, वो A हो, B, C, D कोई भी हो, it is an inflammatory condition. We need to understand that. So hepatitis basically A जो है वो होता है from the food and water sources. BC जो होता है, it is basically happening due to things, materialistic things like अगर needles and razors share होते हैं या there is no safe sex that is practiced, disposables properly use नहीं किए जाते. So ये materialistic चीजों से transfer होता है, whereas A is transferred through hygiene related to food and water condition. Management
बिकॉज कोई भी सोर्स से हेपेटाइटिस हो, मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द लिवर वुड बी सेम. Just a second, I'll just see. Hansraj, please ask your question. गुड इवनिंग मैम. Good evening. ये ओलिव ऑयल का यूज कैसे करना है, कितनी मात्रा में करते हैं? In respect to liver issues आप पूछ रहे हैं जी या हाँ, लीवर, जनरल पूछ रहे हैं? फैटी लीवर के हिसाब से. फैटी लीवर के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे फैट इनटेक कम रहेंगे, सो हम अच्छे ऑयल्स यूज कर सकते हैं जिसमें आता है एनीमिया बोल रही हूँ, जिसमें आते हैं ऑलिव ऑयल, बट वो पोमेस होगा. एंड कितनी क्वांटिटी यूज करनी है वो हमें डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी का वेट कितना है, हम कितनी अच्छा. टोटल कैलोरीज की डाइट बना रहे हैं. वो जो टोटल कैलोरीज की डाइट बनेगी उसमें 20% हमारे टोटल फैट्स होंगे, जिसमें अच्छा. विजिबल इनविजिबल दोनों होंगे. विजिबल इनविजिबल डाइट में से माइनस करके जो बचेगा वो हमारे विजिबल फैट में जाएगा. जी मैम, थैंक यू. राखी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मैम, जो फैटी एसिड है उसके अलावा मैं थोड़ा सा एक चीज और जानना चाह रही थी कि जो हमारी जो कैविटी है उसमें कई बार पानी भरने लग जाता है, और ऐसा कई बार कैंसर कंडीशन में काफी बार देखा जाता है, असाइटिस की जो प्रॉब्लम है. और असाइटिस में अभी मेरे पास में एक पेशेंट है जिनके मिल्की वाटर आ रहा है. वो मेदांता वगैरह सब गए हैं, बट वो मिल्की वाटर अभी तक भी स्टॉप नहीं हो रहा है आना, जबकि कैंसर खत्म हो चुका है उनका. तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि लीवर प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा हो कि वो फैट्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हो और कहीं से लीकेज हो रहा हो कैविटी में? वो वाटर लीकेज नहीं होगा, फैट में डाइजेशन नहीं होगा तो ऑयली स्मेली स्टूल्स होंगे, स्टिटोरिया होगा. ओके, सो एसाइटिस अगर है, यू नीड टू चेक फॉर द सोडियम लेवल्स, क्योंकि उस केस में वाटर होल्ड हो रहा है बॉडी से इन द इंट्रासेल्युलर टिश्यूज. सो यू नीड टू चेक ऑन द सोडियम इनटेक, एंड सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करना है टू 500 to 800 milligrams. फ्लूइड we need to check as per the urine output. ये लिवर से ज्यादा किडनीज की वजह से ज्यादा इफेक्टेड होता है. ओके, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, एक प्रॉब्लम लिवर से शुरू हुई, ठीक है, बट सिंस आई टोल्ड यू लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एंड अगर एक कंडीशन थोड़े लंबे समय तक चलती है, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट पैनक्रियाज और किडनी और हार्ट इन एनी वे, या थायराइड, किसी भी चीज, जो भी बॉडी, हर एक की बॉडी अलग है. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज ए, देयर इज अ नेम ए, उनको लिवर कैंसर हुआ, ठीक है, कैंसर ऑब्वियसली जब लिवर कैंसर होगा बॉडी में इन्फ्लेमेशन होंगी, बॉडी का पीएच एसिडिक रहेगा, so that person may have thyroid impacted because liver cancer के टाइम उनका liver T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, तो थायराइडाइटिस उनका इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेमेशन ने हिट किया थायराइड को. बट केस बी में लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, लिवर का मेन फंक्शन होता है एंजाइम्स और हार्मोन सिक्रीट करना. नाउ किडनी आल्सो नीड्स certain enzymes and hormones for its normal functioning. Kidneys में अगर proper functioning नहीं होगी, because liver is impacted and liver is not giving adequate things to kidney, so kidney हमारा fluid balance maintain करती है. So fluid balance का function mainly kidneys का रहता है. So जहाँ liver, suppose you know this usually is seen in people who have liver cirrhosis. फैटी लीवर उनका अल्कोहल की वजह से होता है, फिर लिवर सिरोसिस होता है. ड्यूरिंग द लास्ट स्टेजेस उनकी लेग्स बहुत मोटी हो जाती है, पूरा पानी भर जाता है. दिस इज बिकॉज योर लिवर, इट हैज अ क्रोनिक कंडीशन एंड इट हैज इम्पैक्टेड योर किडनीज. सो वाटर बैलेंस जो किडनी का फंक्शन होता है वो भी इम्पैक्ट हो जाता है. ओके, तो मैम इस कंडीशन में उनको डाइट में एक तो सोडियम रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बिकॉज उनको लिम्फोमा कैंसर था.
lymph nodes में था, बट अब वो सब तो ओके हो चुका है, बट उनका मिल्की वाटर जो है ना वो उन्हें अभी बाहर निकालना ही पड़ता है, उसकी वजह से वेट लॉस कंटिन्यूअस हो रहा है। So you need to see for the reasons. First of all, maybe doctor must have prescribed some tests to be done to understand why. All tests they done, and they are also in surprise condition ki what is this going on. Every doctor said that that milky patient like that. So it has to be find out. इसी तरीके से तो you know there has to be some values depicting why water सुना है milky water. I have been hearing it for the first time. और उसमें water का जब होता है we cut back on salt which is sodium intake and fluid intake को balance करना होता है with urine output. Okay. तो I will try for that कि sodium restrict करके एक बार देखते हैं हम लोग. Yes. ठीक है. Okay. So most welcome Rakhi. I'll just tell you all to wait for a second and we finish the topic. First of all हमारा anemia बचा है, quickly हम उसे भी cover कर लेते हैं. anemia. Now anemia basically हमें पता है जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है बॉडी में उस कंडीशन को एनीमिया बोला जाता है. सो नाउ रिमेम्बर जब हमें ग्लूकोज को सेल के अंदर डालना था हमें इंसुलिन चाहिए था. एक्सक्यूज मी. इसी केस में जैसे हमारी ब्लड में हम लंग्स में ब्रीथ करते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, लंग्स से फिर ऑक्सीजन हर एक सेल हमारी बॉडी में ट्रिलियंस, मिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी होता है. सो ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन जो ब्लड में है. हीमोग्लोबिन एक व्हीकल है जो ऑक्सीजन को अपने ऊपर बिठाता है और फिर हर एक सेल तक पहुंच जाता है. बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं. अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी बिकम्स लेस. एनीमिया की कमी होती है आयरन की कमी की वजह से. विटामिन B6, B12, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई इन और प्रोटीन, इन सबकी में से कोई ना कोई डेफिशिएंसी होगी तो आयरन की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन लो हो सकता है. It usually happens to children and women of any age. One has to have good intake of a balanced diet. इस स्लाइड में दिए गए हैं रीजंस कि क्यों अडल्ट, प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस में क्यों हीमोग्लोबिन लेवल्स कम होते हैं. देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर ईच एज ग्रुप व्हिच यू कैन ऑल गो थ्रू एंड लेट मी नो इफ पर्टिकुलर रीजन you don't understand. I will explain. Now there are 3 types of anemia. Hypochromic microcytic anemia जो कि बेसिकली आयरन की कमी की वजह से होता है बॉडी में. Megaloblastic anemia is either due to the deficiency of folic acid or due to the deficiency of B12. And dimorphic anemia is दो चीजों की deficiency होती है, either iron and folic acid or B12 and folic acid. Hemoglobin levels are given, reference ranges are given for people. Now iron deficiency first stage में पता नहीं चलता है कि किसी को आयरन की कमी हो रही है. सेकेंड स्टेज में जब अगर हम सीरम फेरिटिन लेवल टेस्ट करवाते हैं तो यूजुअल सीरम फेरिटिन लेवल्स 30 ग्राम होती है विच ड्रॉप्स डाउन टू 15 ग्राम्स. इस स्टेज में भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम नहीं दिखेगा. स्टेज 3 तक पूरी सीरम फेरिटिन लेवल्स एग्जॉस्ट हो जाती है और उस समय फिर हमारी रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम आता है. So these are the food sources of iron, B12 and folate, and obviously NGTV app में आप food source nutrient डाल के you can get a lot of sources. आज इंडिया में एनीमिया की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए फोर्टिफिकेशन की जाती है कुछ फूड्स की एंड उनमें आयरन का केमिकल फॉर्म डाला जाता है. सॉल्ट इज वन फूड जिसमें फोर्टिफिकेशन की गई है. one person should have a balanced diet because हम सिर्फ आयरन की कमी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होता है. It is because of other nutrients also. So our diet should be good in vegetarian sources which are listed here and non-vegetarian sources also. हाँ, जब हम
एक आयरन रिच मील के साथ विटामिन सी रिच फूड लेते हैं तो आयरन एब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छा होता है। लाइक अगर हम एक पालक का पराठा ले रहे हैं, उसके साथ अगर हम थोड़ा सा नींबू, उसके 15 मिनट बाद अगर हम नींबू पानी ले लेते हैं, सो लेमन विच हैज विटामिन सी विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ पालक। ओके, या हमने पालक वाली दाल बनाई है, उसमें हमने फ्यू ड्रॉप्स लेमन के ऐड कर दिए दाल में ही, इट विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। बट व्हेन वी आर हैविंग एनी आयरन रिच फूड और एनी न्यूट्रिएंट रिच फूड, वी शुड बी अवॉइडिंग कैफीन, बिकॉज टी कॉफी में जो कैफीन होती है दैट इंटरफेयर्स विद द आयरन एब्जॉर्प्शन। ओके, सो जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में है ना चलन कि खाने के साथ, नाश्ते के साथ चाय पीते हैं, दैट इज समथिंग वेरी वेरी बैड. So these are the foods that are permitted. This is the simple diet plan for anemic individual. Again, यहाँ पे एक एरर मुझे दिखा था सुबह भी जब मैंने क्लास ली थी, टी कॉफी विद नहीं होगा, टी कॉफी के आफ्टर 15 to 20 मिनट्स बाद ही हम स्नैक लेंगे. So if you see orange juice, yogurt and green beans, fruit salad, ये vitamin C and green leafies are included in the diet so that the iron absorption increases. आयुर्वेद में एनीमिया में पित्ता और वता दोष में इम्बैलेंस होता है, इसे पांडु रोग भी बोलते हैं. आयुर्वेद के हिसाब से अगर कोई बहुत स्पाइसी, सॉल्टी, बहुत ज्यादा एसिडिक या अल्कलाइन फूड लेते हैं, सो दैट कैन बी द रीजन फॉर एनीमिया. इनकम्पैटिबल फूड्स अगर हम साथ में लेते हैं या नॉन न्यूट्रिशनल फूड्स का इंटेक ज्यादा रहता है तो एनीमिया रहता है. If person is doing too much of exercise and the person is sleeping during the day और वो अपनी यूरिन और स्टूल के अर्जेस को सप्रेस करते हैं और किसी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस रहता है, वो भी एनीमिया का रीजन बन सकता है. सो वन हैज टू बी स्ट्रेस फ्री, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी, डे टाइम स्लीपिंग अवॉइड करनी है, स्लीप टाइमिंग्स मेंटेन करनी है. मील्स, फ्रूट्स को हमें मील्स के साथ मिक्स नहीं करना है, heavy meals नहीं लेनी है. We need to have good spices in our diet but not too much. Okay, जो हमारे नॉर्मल जीरा वगैरह होते हैं वो लेने हैं. जिंजर, गार्लिक आर वेरी गुड. कोरिएंडर सीड का पानी हम ले सकते हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर बाउल मूवमेंट्स अगर आपको उनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं. अनार का जूस, ओवरनाइट सोक्ड रेजिन्स, फिग्स जिसे अंजीर भी बोलते हैं, थोड़ा सा इलायची डाल के दूध, हैविंग बनानास, हैविंग आमला, बीटरूट जूस, जैगरी, दीज आर वेरी गुड टू बूस्ट योर रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन कंटेंट. कुछ आसन्स भी हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, जैसे कि चक्रासन, उत्तरासन, त्रिकोणासन, Sarvangasana, Pranayam and Surya Namaskar. These are various formulations that can be taken in the diet for anemic individual. That was all. I'll just take your questions. Yes, Samarita, please ask your question. हेलो मैम. जी मैम ये आपने जो बताया फैटी लिवर के लिए, जी रॉ टर्मरिक ले सकते हैं? हाँ, raw turmeric will be very very beneficial for any liver condition, because अगर आप पैनक्रियाटाइटिस भी देखो या फैटी लिवर देखो या एनीमिया देखो, जो कुर्क्यूमिन होता है, टर्मरिक में एक एलिमेंट होता है, कंपोनेंट होता है कुर्क्यूमिन, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर इन्फ्लेमेशन. सो आप डेफिनेटली ले सकते हैं. तो दैट कैन बी टेकन इन एम्प्टी स्टमक? हाँ, टर्मरिक वाटर, थोड़ा सा रॉ टर्मरिक को ग्रेट करके पानी में अच्छे से उबाल के फिर थोड़ा छान के, यू कैन टेक दैट अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक. और कोकोनट? कोकोनट बेसिकली सैचुरेटेड फैट्स में आता है, तो उसका इंटेक हमें कम करना है. और ये लाइम वाटर आप बता रहे थे, तो लाइम वो वाटर ले कितने सकते बार ले हैं. सकते हैं दिन में? आप दिन Can में we have 1 it से 2 frequently? बार, हाँ 1 से 2 बार ले सकते हैं. ओके, नॉट मोर देन दैट. या और कैन वी मिक्स टर्मरिक एंड लाइम वाटर? हाँ, डेफिनेटली. आप टर्मरिक, जैसे आप टर्मरिक ग्रेट करके वाटर बना रहे हो, once you sieve the water in the glass, then you can add little lime juice, lemon juice, that. ओके, थैंक यू मैम. Okay. Hema, please ask your question. मैम, अगर किसी को
नी का इशू है या स्लिप डिस्क का इशू है, तो वो प्राणायाम एंड अदर आसन कैसे कर सकता है? उसका बेनिफिट तो उसको मिल ही नहीं पाएगा फिर। हाँ, तो वो तो ऑब्वियसली उनको इश्यूज है, तो वो फिर वो चीजें प्राणायाम तो वो स्टिल कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, बट दे कांट डू चक्रासन और सूर्य नमस्कार, वो नहीं कर सकते। तो मैम प्राणायाम भी अगर लेग स्ट्रेट करके अगर वो कर रहे हैं तो क्या उसमें उनको फायदा मिलेगा? हाँ हाँ, डेफिनेटली प्राणायाम इज ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट इन अ सर्टेन रिदम, सो डेफिनेटली मिलेगा। एंड ना कपालभाति में? मिलने से तो बेटर होगा ना, ये दे हाँ, विल गेट सम मोर द बेनिफिट डेफिनेटली। कपालभाति भी कर सकते हैं इस तरह तो फिर? बिल्कुल कर सकते हैं। The ideal pose is crossing your legs, sitting, भस्त्रिका में sitting in वज्रासन, वो ideal position है। बट अगर किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज है तो वो जमीन पे बैठने की जगह कुर्सी पे बैठ के भी लोग तो करते हैं, है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस डेफिनेटली थिंग्स कैन बी मॉडिफाइड, एटलीस्ट 100% नहीं 90% बेनिफिट तो वो रीप इन कर ही पाएंगे। ओके ओके, थैंक यू मैम। Sugandha, please ask your question. Yeah, my question is, do you have any diet plan, diet recommendations for polycythemia, opposite of anemia, excess hemoglobin? See, in that case, we need to find out why there is excess hemoglobin. Yes, कुछ लोगों की range 22 तक पहुंच जाती है. So there is no specific diet plan for that. First thing is we need to find out कि body में क्या होता है. There is some iron saturation, iron absorption. तो जब वो complete blood count करते हैं तो doctor find out करते हैं कि क्या reason है. Reason के हिसाब से कौन सी particular element is going wrong, we try to work on the root cause of that. So पहले अगर आप reasons find कर लोगे, then we will be able to restrict those particular foods from the diet. Basically iron, protein, vitamin B6, B12, vitamin C, vitamin E, ये nutrients में से ही कोई ना कोई restrict करते हैं फिर. Okay. Okay. Okay, ठीक है, thank you. Parul, please ask your question. या सो कैंसर पेशेंट में कीमोथेरेपी लगने के साथ साथ उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जी, तो उसके लिए क्या डाइट सजेस्ट करनी चाहिए? Same that we have discussed today. ओके, बिकॉज लाइक मेरी मदर इन लॉ कैंसर पेशेंट है और वो सेम टाइप की डाइट ले रही थी, वो चुकंदर, गाजर, सभी तरह की चीजें ले रही थी जो एनीमिया, जो हीमोग्लोबिन बढ़ा है, बट स्टिल उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया. You need to check on, आज में भी आपको समझ में आया होगा कि ठीक है ये सारी डाइट है, बट you need, जो आप उनको डाइट दे रहे हो एक बार चेक करो, put that in the app and see क्या वो अपनी B6, B12, आयरन, विटामिन C और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं. इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट अगर मीट नहीं हो रही होगी, उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा. ओके Okay, so first check on that कि whether she is meeting the requirements or not. At least do this for consecutive 3 days ताकि आपको average पता चल सके हर एक की. ओके, ठीक है. Kavya, please ask your question. Hi, what are the symptoms of the fatty liver? What are the symptoms? The person will have there are different issues, there are different symptoms of fatty liver. Alcoholic and non-alcoholic में भी थोड़ा सा difference आ जाता है. Just a minute. जब किसी को alcoholic one, if the person has an alcoholic fatty liver, he or she will have first symptom for liver is abdominal pain. Abdominal pain. Yeah, abdominal pain can be very can be tolerable and can be radiating also depending upon the severity. Second thing is unexplained weight loss, sometimes nausea or loss of appetite. In spite the person is
is having the calorie requirements, but उनका appetite ही एकदम से zero down हो जाएगा, and obviously eventually उनका weight loss होगा. Then sometimes you can see edema, you know, fingers close करने में usually कुछ लोगों को problem होती है water retention, but constantly अगर water retention रह रहा है या edema रह रहा है, one thing what we can usually do is suppose we take this surface of the skin, या हम thigh में ले लेते हैं या arm में लेते हैं, and we take the thumb and press it tight. Okay. And my skin, if I'm pressing, it is coming back to normal, but the person who will have fatty liver या fatty liver related edema होगा, वो जब press करेंगे तो एक bump रह जाएगा, which will take 1 or 2 seconds to get normalized. Okay. So that is another thing. And then the other thing can be the person will be in a confused state of mind. He will remain always tired. There will be unexplained weakness because of no reason, and there can be seen little swelling on the lower limbs. And बहुत extreme case हो जाता है तो yellowish tinge can be seen in his eyes or nails. Okay. Thank you. Most welcome. Yes, Samarita, please ask your question. Hello, ma'am. Yes, please ask. Yeah, is milk good for fatty liver? It should be avoided. Milk should be avoided. Buttermilk can be given. Curd also should be avoided. Okay. Thank you. Beena, please ask your question. Ma'am, what should be the gap between tea, coffee, and snacks? Minimum 30 minutes. 30 minutes. So we used to take rusk biscuits and all, no, along with tea. So isn't it good? See, tea, rusk, biscuits do not have any nutrients. These are empty calories. Even if you're buying Mary Light biscuit or a multigrain biscuit or a biscuit who's claimed to have good nutrients, if you just flip, it is just a source of empty calories, bad fat. So पहले तो वो लेना ही नहीं चाहिए. So, and in case if you take tea, biscuits, as such, they don't have any nutrients, so it is okay. Okay, thank you. Okay. Okay. So how to identify different grades of fatty liver? It is estimated by the doctors. They do certain tests, जिसमें fat कितना deposited है liver में, उसके basis पे grade 1, grade 2, grade 3 detect होता है. Coconut water is okay to be taken in liver disease. That does not have bad fats in them. Okay. All right. These were the questions in the chat section. So we end up the class today. We are done with all the questions also. And I will see you all tomorrow. Have a lovely evening. Take care.